اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپریشن سندور کو لے کر بحث ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ آپریشن سندور کو لے کر چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان کا ایک عجیب بیان آیا ہے۔ انہوں نے پھر کرکٹ کی زبان میں یہ کہا کہ کتنے وکٹ گرے یہ اہم نہیں، فتح یابی ملی، جیت ملی، یہ اہم ہے۔ یعنی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان نے ایک بار پھر کرکٹ کی زبان بولی ہے، جس کو لے کر باقاعدہ ایک وواد کھڑا ہو گیا ہے۔ یعنی شہیدوں کی شہادت کو اور ان کی جان کو وکٹ گرنے کی بات سے تعبیر کر رہے ہیں۔ خیر، یہ بھی بات انہوں نے کہی کہ سرجیکل اسٹرائک شروع کرنے کے دن ہی پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اسی کو لے کر تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مکاری ہے، یہ تو ملک کے ساتھ غداری ہے۔ جی ہاں، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی جو کچھ حرکت کی ہے وہ گھٹیا حرکت ہے، وہ غداری ہے۔ دشمن کو پہلے خبردار نہیں کیا جاتا ہے، اور دشمن کو اگر خبردار کر دیا گیا کہ کل ہم آپ پر حملہ کرنے والے ہیں تو آپ خود سوچئے دشمن پہلے ہی سب کچھ تیاری کر لے گا۔ تو خیر، آپریشن سندور کو لے کر انہوں نے یہ کہا کہ سرجیکل اسٹرائک شروع کرنے کے دن ہی پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ تو اب لوگ اس جملے پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر جی مودی بہار اور بنگال الیکشن سے پہلے ایک بار پھر نوٹنکی کروائیں گے تاکہ پورا الیکشن میں اس کا فائدہ ملے، جیسے 2019 میں فوجی جوانوں کی شہادت کا فائدہ ملا تھا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، راہل گاندھی اپوزیشن لیڈر، کانگریس کے قد آور نیتا نے پارٹی کارکنان کو، پارٹی لیڈران کو راہل گاندھی نے بڑی نصیحت کی اور ایک جملہ کہا جو کافی وائرل ہو رہا ہے، اور میں اس سے متفق ہوں۔ راہل گاندھی میرے اپنے لیڈر ہیں، میں ان کی اس بات سے متفق ہوں۔ بہت اچھا جملہ انہوں نے کہا، اور کہیں نہ کہیں کانگریس اس میں لاپرواہی برتتی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کانگریس کو کافی نقصان ہوا ہے کہ گدھے اور گھوڑوں کو ایک ہی لائن میں کانگریس کھڑا کرتی ہے۔ لیکن راہل گاندھی نے جملہ کہا کہ اب ریس کا گھوڑا ریس میں رہے گا، بارات کا گھوڑا بارات میں، اور لنگڑا گھوڑا گھر جائے گا۔ جی ہاں،
राहुल गांधी उस वक्त मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे पर है। यहां उनकी सरगर्मियां देखने मिली। जिला सुदूर के साथ उनकी मीटिंग थी, जिस मीटिंग में उन्होंने खुलकर ये कहा और इशारा दे दिया कि पार्टी में काम करने वाले लोगों को अहमियत दी जाएगी। उन्होंने मीटिंग में कहा कि एक रेस का घोड़ा होता है, एक बारात का घोड़ा होता है। मुझे मध्य प्रदेश में आकर पता चला कि तीसरा लंगड़ा घोड़ा भी होता है। पहले कांग्रेस बारात के घोड़े को रेस में भेज देती थी और रेस के घोड़े को बारात में भेज देती थी। अब रेस का घोड़ा रेस में, बारात का घोड़ा बारात में और लंगड़ा घोड़ा घर जाएगा। आइए रात में बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अडानी ग्रुप, जी बीजेपी के फाइनेंसर, मोदी जी के बड़े जिगरी लगते बिलकते लंगोटी यार, इन्हीं की वजह से पूरे मुल्क को बेचा जा रहा है और नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स को बड़ा खतरनाक नुकसान पहुंचाया गया है। और किसने पहुंचाया? अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बात आई है कि 8 कंपनियां इस वक्त बड़े खसारे में हैं। हिंदुस्तान के तीसरे सबसे बड़े अडानी ग्रुप के शेयर में गुज़िश्ता कल यानी मंगल को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। गिरावट की असल वजह अमेरिकी बिजनेस अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि अमेरिकी अफसरान गौतम अडानी की कंपनियों की तहकीकात कर रहे हैं। इल्जाम है कि अडानी की कंपनियों ने ईरान से एलपीजी गैस मुंद्रा बंदरगाह के रास्ते हिंदुस्तान लाया है, लेकिन अडानी ग्रुप ने इन इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया है। अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट को बताया कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, हमने किसी भी तरह की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं की है और न ही ईरान से एलपीजी का सौदा किया है। लेकिन अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सीज फायर जंग बंदी को लेकर भी अभी तक बहस खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, पूरी तरीके से हमारी फौज तैयार थी और हमको खुद को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को अब हमेशा हमेशा के लिए सबक सिखाया जाएगा। और मुझे तो खुद को ऐसा लग रहा था कि अगला जुमा मैं पाकिस्तान की किसी मस्जिद में बयान करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा हो चुका होगा, बगैर वीजा के हम वहां जाएंगे। लेकिन क्या करें, पूरी तैयारी थी और हमारा 56 इंच का सीना ऐन वक्त में पीछे हट गया। अब किसके कहने पर पीछे हटा? तो दुनिया को यह पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल की वजह से मोदी पीछे हटे हैं। और यही बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। गुज़िश्ता कल भी राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जबरदस्त घेरा और कहा कि ट्रंप की फोन कॉल पर नरेंद्र मोदी ने जंगबंदी का ऐलान किया है। नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबर इस वक्त मगरिबी बंगाल कोलकाता से आ रही है। खबर यह है कि आज़ाद तकरीर की आज़ादी, बोलने की आज़ादी के नाम पर भगवा आतंकियों ने इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, प्यारे नबी, प्यारे कुरान के खिलाफ, प्यारे दीन के खिलाफ बहुत कुछ बोला और मुसलमानों को तो हमेशा निशाना बनाया। लेकिन अभी खबर आ रही है कि एक खबीस लड़की, एक शैतानी हरकत करने वाली लड़की शर्मिस्ता, जो पूना के कॉलेज में पढ़ती थी, उसने इस्लाम के खिलाफ और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था, बयान दिया था। लेकिन अब खबर आ रही कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस गुस्ताख शर्मिस्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बजाओ इस पर ताली। जी हाँ, और कहा कि आज़ाद तकरीर, आज़ादी इस ख्याल का मतलब और बोलने की आज़ादी का मतलब दूसरों को तकलीफ देना नहीं है। अल्लाह करे कि ये मामला पूरे मुल्क में आम हो और जितने हमारे पास में जितने भी खबीस है जो इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उन तमाम को बाकायदा जेल की सलाखों में डाला जाना चाहिए। नाज़रीन, पहलगाम हमले को लेकर अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवालात बाकी है, जिनके जवाब नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ने और अमित शाह ने, वजीर दिफा ने अभी तक नहीं दिया है। अरे यार, पहलगाम हमला तो अभी का है, 2019 में
40 फौजियों की शहादत पर नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने इलेक्शन जीता है। शहादत को भी भीख बनाकर वोट मांगा है और अभी पहलगाम को भी भीख बनाकर वोट मांगने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन खैर, पहलगाम हमले को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि पहलगाम हमला और जंगबंदी, ये दोनों मामले को लेकर 16 पार्टियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा और उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह डिमांड किया कि खुसूसी पार्लियामेंट का इजलास बैठक बुलाई जाए जिसमें पहलगाम हमले को लेकर और जंगबंदी को लेकर खुसूसी बहस हो। लेकिन लगता ऐसा है कि आज तक नरेंद्र मोदी न कभी पत्रकारों के सामने आए हैं। हाँ, वो अक्षय कुमार के सामने आते हैं और वो आम को चूस के खाते हैं या छील कर खाते हैं या फाड़ कर खाते हैं, ऐसे सवालात के लिए सामने आते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने मुल्क की सालिमियत को लेकर और मुल्क के हालात को लेकर कभी भी किसी सवाल का सामना ही नहीं किया है। मगर ये 16 पार्टियां एक साथ खत लिखकर नरेंद्र मोदी से कह रही है कि खास पार्लियामेंट का जलसा बुलाया जाए और पहलगाम हमले को लेकर और जंगबंदी को लेकर सवालात के जवाब दिए जाए और जनता को हकीकत बताई जाए। आइए नाज़रीन, बिहार का इलेक्शन जूं जूं करीब आ रहा है, पॉलिसियां ऐसी लाई जा रही है जिसमें जैसे हमारे यहाँ लाडली बहन लाई गई थी, तो कुछ ना कुछ तो तोहफा बिहार वालों को देना पड़ेगा। और बिहार का इलेक्शन कितनी अहमियत रखता है कि आप अंदाजा लगाए, पहलगाम में भारतवासी दहशतगर्दों के हमले से कत्ल किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पहलगाम नहीं गए, कश्मीर का दौरा नहीं किया। बिहार का इलेक्शन इतना जरूरी और अहम है जीतना कि सऊदी अरब से सीधा नरेंद्र मोदी बिहार प्रचार करने के लिए पहुंचे। तो खैर, बिहार का इलेक्शन बड़ा अहम है। अब बिहार में इलेक्शन से पहले नौकरियों का तोहफा दिया जा रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हैं, उन्होंने उनकी सदारत में काबीना की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में 47 एजेंडों की मंजूरी दी गई जिसमें नौकरियों का तोहफा दिया जा रहा है, इसका भी ऐलान किया गया। हजारों असामियों पर भर्तियां होंगी, इसका ऐलान किया गया। आइए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के खाम गांव से हमारे रिपोर्टर मौलाना शब्बीर साहब ने यह बताया कि खामगांव शहर के बर्डे प्लाट का रहने वाला और साबिक काउंसलर मोहम्मद नईम का होनहार फर्जंद मोहम्मद फरहान ने अपनी गैर मामूली सलाहियत, हौसले और मुसलसल कामयाबियों के जरिए बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर खामगांव, महाराष्ट्र और खासतौर पर विदर्भ का नाम रोशन कर दिया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद फरहान आलमी क्रू वर्ल्ड कप 2025 में भारत की नुमाइंदगी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अक्षय कुमार कप के गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान की बैनुल अक़वामी परवाज सामने आई है। बताया जा रहा है कि नौजवान कराटे खिलाड़ी मोहम्मद फरहान का इंतखाब 7 से 9 जुलाई 2025 को आर्मेनिया के शहर एरिवान में मुनक्किद होने वाले यूरेशियन क्रू वर्ल्ड कप 2025 में भारत की नुमाइंदगी के लिए किया गया है। महज 19 साल की उम्र में मोहम्मद फरहान ने रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और मैं आपको बता दूं कि तमाम नौजवानों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए ये कामयाबी मोहम्मद फरहान की 19 साल की उम्र में उनकी ये कामयाबी तमाम नौजवानों के लिए एक मिसाल है कि मुसलसल मेहनत, सही रहनुमाई, सच्ची तड़प, जज्बा और लगन इंसान को आलमी सतह तक पहुंचा सकती है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा, कुर्बानी का त्यौहार करीब आ रहा है और मुसलमानों ने उलमा की बातों पर ध्यान दिया, उलमा की बातों पर, अपीलों पर अमल का इरादा किया और तमाम ममनुआ बैन जानवर, जिन जानवरों को सरकार ने मना किया है, उन तमाम जानवरों की खरीदारी से मुसलमान जबरदस्त अंदाज में रुक गए हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि अब बकरे की मांग बढ़ गई है।
खबरें आ रही है कि देवनार स्लॉटर हाउस में कुर्बानी के जानवरों की रिकॉर्ड खरीदारी सामने आई है। भैंस और पाड़े जिनकी इजाजत है ये भी खूब बिक रहे हैं और गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल अल्लाह ने जानवर ज्यादा भेजे हैं, अल्लाह ही ने भेजे हैं। और अभी फिलहाल हमारे इलाके का आज बुध का बड़ा बाजार होता है, फैसपुर का बाजार जो पाडलसा में लगा है। पाडलसा के बाजार में खुद मेरा जो साला है मौलाना रिजवान फलाही, वो मेरी कुर्बानी के बकरे खरीदने के लिए गया है, तो उसने वहां की वीडियो भी भेजा है कि वहां पर भी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक रास्ता जाम है। इतने व्यापारी बकरे लेकर आए हैं और बकरों की खरीदारी बड़े पैमाने पर हो रही है। मुसलमानों, शुक्रिया तुमने उलमा की बातों को माना। वैसे पहले भी हम लोग इसका ख्याल रखते थे, लेकिन इस साल ज्यादा बड़े पैमाने पर उलमा की बातों को मुसलमानों ने माना और ममनुआ बैन जानवरों को खरीदने से इनकार कर दिया। इंशाअल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट, अच्छा नतीजा मुसलमानों आपको देखने मिलेगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोल्हापुर के विशालगढ़ किले की एक दरगाह में बकरा ईद और उर्स के लिए जानवरों को ज़बह करने की इजाजत दे दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगल को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में वाक़ विशालगढ़ किले की एक दरगाह में ईद उल अजहा और उर्स के लिए जानवरों को ज़बह करने की इजाजत दे दी है। यह किला एक महफूज यादगार है जिसका हवाला देते हुए हुक्काम ने इहाते में जानवरों और परिंदों को ज़बह करने पर पहले पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन अब बाकायदा मुंबई हाई कोर्ट ने विशालगढ़ किले की एक दरगाह में बकरीद और उर्स के लिए जानवरों को ज़बह करने की इजाजत दे दी है।